أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ غلام علی علی اصغر قربان چراغ شاربہ کو ٹھیک ہے؟ آج گفتگو اس چیز کے بارے میں سمجھیا میں کتاب سمجھیا میں ٹھیک ہے کافی دن بعد ہم سمجھیا کی ریکارڈنگ ہوئی کتاب سمجھیا میں بات چل رہی تھی کس کی موضوع کیا تھا کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی الاسماء المشبہۃ بالافعال وہ اسماء جو افعال سے مشابہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں چل رہی تھی بتایا کون کون سی چیزیں ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہہ آگے مصدر سب سے پہلے مصدر جائیں مصدر اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہہ پانچواں اس میں تفصیل کے بارے میں بات پہلی ہیڈنگ بتایا کہ یہ پانچ ہیں توابع کی طرح یہ بھی پانچ یعنی یہ توابع کی طرح ہے توابع کی طرح ہے عدد میں نہ کہ کسی اور چیز عدد میں یہ توابع کی طرح جیسے توابع عدد میں پانچ تھی یہ پانچواں اس میں تفصیل چل رہا تھا اس میں تفصیل کے بارے میں ہم نے اس کی تعریف اور اس کے استعمالات پڑھے تھے تین استعمال ہیں یاد ہے اس میں تفصیل کے استعمال کتنے ہیں جی یا تو بن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یاد ہے بن کے ساتھ مثال کے طور پر افضل من افضل پر یہ بتایا تھا اس کی شرط بھی آپ کی ہے شرط بتائی تھی شرط بتائی تھی آپ کے ساتھ شرط بتائی تھی اس میں تفصیل کی کیا شرط بتائی تھی شرط بتائی تھی اس میں تفصیل جو بنتا ہے اس فعل سے بنتا ہے پہلے بات فعل سے بنتا ہے اس کی 6-7 شرطیں تھی کیا ثلاثی ہو جدید متصرف ہو یہ ثلاثی مجرد متصرف تام قابل تفاضل ہو رنگ و عیب کے معنی میں دلالت یہ ہوگا ان شرطوں کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر اور جس فعل میں شرطیں موجود نہ ہوں کوئی ایک شرط ٹوٹی ہوئی تو اس کے لیے کیا کہا تھا ایک افعال وصفی لائیں گے افعال کے وزن پہ اور اس کے بعد جس فعل میں شرط نہیں ہے اس کے مصدر کو منصوب اس کے بعد دیں گے مثال کے طور پر تصریف ہے صرف یصرف ہے مثال کے طور پر صرف یصرف ثلاثی تو ہے لیکن مجرد نہیں ہے شرط ٹوٹی ہوئی ہے تو ایک افعال لائیں گے مثال کے طور پر اکثر و تصریف آئیں جس کا مطلب کیا ہے صرف یصرف تصریف اکثر و تصریف وہ منصوب لے آئیں گے ایک افعال کے بعد ٹھیک ہے یہی بتایا تھا یہ شرط کہا کہ جو 6-7 شرط بتائیں شرطوں کے ساتھ اس میں تفصیل بنتا ہے افعال کے وزن کو مقدر کے لیے قرآن کے لیے بولا مؤنث کے لیے لیکن اس کے استعمالات تین بتائے تھے یا تو اس میں تفصیل مین کے ساتھ استعمال ہوگا اس کا حکم کیا بتایا تھا اگر اس میں تفصیل مین کے ساتھ استعمال ہو تو ہمیشہ مفرد مذکر آئے گا یا افعال کے وزن پہ آئے گا چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو اس کا مثال کے طور پر میں کہوں زید افضل من خالد الزیدان افضل من خالد الزیدون افضل من فلاں ہند افضل من فلاں الہندان مذکر مؤنث سب کے لیے پھر افعال ہی رہے گا یہی حکم بتایا تھا ایک استعمال دوسرا استعمال کیا الف لام کے ساتھ کیا الف لام کے ساتھ یا تو اس میں تفصیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا کام کے ساتھ جب استعمال ہوگا اس میں تفصیل تو پھر مل نہیں ہوگا پھر مل نہیں ہوگا صورت میں اس کا حکم کیا بتایا تھا مطابقت مفرد تسنیہ جمع کے لیے جمع مذکر کے لیے مطلب مثال کے طور پر
हिंदुल अफजल, जैदुल अफजल, हिंदुल फुजला, हिंद है तो फुजला, असैदानिल अफजलाने, असैदुनल अफजलूना, हिंदुल फुजला, अल हिंदानिल फुजलायान और अल हिंदाकुल फुजलायान। ठीक है। एक इस्तेमाल क्या होता है था, मुदाफ, मुदाफ क्या मुदाफ इस्तेमाल होगा, अफजलुल नास, अफजल या फिर मुदाफ इस्तेमाल होगा। इस तरह हुक्म क्या बताया था, ठीक है, इसका हुक्म बताया था कि अगर इसमें तब्दील मुदाफ इस्तेमाल हो तो दो सूरतें बनती है। पहली तो ये कि हम जैदुन, जैदुन अगर, अगर जो मौसूफ है उसको हम मुदाफ इलैह पे फजीलत देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ जैद को तो ऊपर इस पे नास को फजीलत देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए शर्त ये है कि वो उस मौसूफ जो है इसमें तफसील जिसकी सिफत है वो उसी में से हो। आप ये नहीं कह सकते जैदुन अफजल जिन्ना, जैद जिन्हों में सबसे ज्यादा अफजल, नहीं कह सकते। क्यों? जैद इंसान है, जिन्ना अगर हम फजीलत इसमें तफसील के मौसूफ को उसके मुदाफ इलैह पे फजीलत देना चाह रहे हैं तो वाजिब है कि फिर वो इसमें तफसील का मौसूफ उसकी मुदाफ इलैह में से हो। ठीक है। तो हुक्म क्या है, हुक्म यह है कि दोनों सूरत जायज है, मुताबिकत भी और जनाब जैदुन अफजलुन नास, हिंदुन अफजलुन नास भी कह सकते हैं, हिंदुन फजलुन नास भी कह सकते हैं। ठीक है। ये एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि नहीं, हमें इसमें तब्दील के मौसूफ को कॉमन तौर पर फजीलत दे रहे हैं, जरूर कॉमन तौर पर, मुदाफ इलैह पे नहीं, बल्कि मुदाफ इलैह और उसके अलावा कोई ना कोई कॉमन तौर पर। तो इस पे इन्होंने कहा कि मुफरद मुज़क्कर आएगा, बस आगे की किताब इसका अलग से नजरिया, जमहूर का नजरिया नहीं, उल्टा है बिल्कुल, मुताबिकत वाजिब है, मुताबिकत वाजिब है। मैं आज तीन इस्तेमाल, ये थोड़ा सा दोहरा के फिर आगे आपको एक मसला अल्कोहल भी समझाते हैं, मसला अल्कोहल। तब से रखना, तब से रखना ये सालिसो, तीसरा इस्तेमाल याद है नहीं, ऊपर देखिए पीछे आइए, हाँ ततिम्मत पे आइए, ततिम्मत पिछले सफे पे, युस्तामलो यानी इसमें तब्दील इस्तेमाल होता है इम्मा बिमिन और बिअल और मुज़ाफ़र। इसकी पहला का हमने बताया, अभी दोहराया, मुफरद मुज़क्कर आएगा पहले में तो हमेशा, अगर मिन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हिंदू कह दो तो भी अफसर हो, नहीं अज़ैदानी कह लो तब भी अफसर, मुफरद हो तस्नीह हो जाता। लेकिन कभी कभी ये मिन हस्ब भी हो जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर मिन, वसानी दूसरा इस्तेमाल क्या था अल्लाह के साथ, उसमें क्या था युताबिकु मौसूफहु, युताबिकु की ज़मीर कहाँ पलट रही है इसमें, इसमें तब्दील अपने मौसूफ से मुताबिकत करता है, वला युजामिउ मा मिन, और मिन के साथ फिर जमा नहीं होता, अगर इसमें तब्दील का ये काम आ जाए तो फिर वो मिन नहीं आ सकता उसके साथ। तो ऐसी सूरत में मुताबिकत वाजिब है, जैसे हिंदू में फुजला, हिंद मोहन्नस है तो फुजला भी मोहन्नस है, हिंद मुफरद है तो फुजला भी, हिंद मुफरद है तो फुजला भी मुफरद है। ज़ैदान अफजलान में ज़ैदान मुज़क्कर तो अफजलान भी मुज़क्कर, ज़ैदान तस्नीया तो अफजलान। ये दो दो मिसालें दी हैं, पूरी पूरी क्यों नहीं दी, छह सीधे होते हैं ना, ताकि आप समझ सके, मैं दो से ही समझ लेंगे मुज़क्कर के, आप समझ। अस्सालिस, तीसरा इस्तेमाल क्या था, मुदाफ इस्तेमाल होता है इसमें तफसील। तो ऐसी सूरत में दो सूरतें बनती हैं, उन इन को से तफसील को अलामा नसीबा है, अगर कस्त किया जाए मौसूफ की फजीलत का, जो इसमें तफसील का मौसूफ है, जैसे जैद इसमें अगर इला, जहाँ अलामा नसीबा है जिसकी तरफ इसमें तफसील मुदाफ हुआ है, अफजलुन नास, मसलन हम जैद को फजीलत दे रहे हैं नास पर, उसके मुदाफ इलैह पर इसमें तफसील है, तो ऐसी सूरत में वाजिब है कि मौसूफ उस मुदाफ इलैह में से ही हो, इसमें तफसील का मौसूफ, तो ऐसी सूरत में ज्यादा मुताबिकत हो, मुताबिकत भी जायज है और अदम में मुताबिकत भी। आप ज़ैदाने तस्निया है तो आलमा भी तस्निया ला सकते हैं, आलमन्ना से, और
अज़्ज़ैदान अअलमुन नास भी कह सकते हैं, ठीक है, अअलम मुफरद भी ला सकते हैं, ठीक है। देखिए अज़्ज़ैदान को मौसूफ है और मुज़ाफ इलैह क्या नास, इन दो ज़ैद को हम नास के ऊपर फजीलत दे रहे हैं। तो आप आलमा तस्निया है ज़दान, तो आलमा तस्निया भी ला सकते हैं, आलमाने था नून इजाफत की वजह से कट जाएगा नहीं। और अगर ज़ैदूना होता तो आलमूना था, नून की जगह आलमुन्नास भी कह सकते हैं और मुफरद भी ला सकते हैं आलमुन्नास। वो आला हाज़ा, इसी बिना पर, किस बिना पर, कि अगर मौसूफ को इसमें तब्दील के मुज़ाफ इलैह पे फजीलत देने का इरादा हो तो वाजिब है कि वो मौसूफ उसमें से हो, मुज़ाफ इलैह में से ही हो। इस बिना पर यमतनउ, मना है इस तरीके से कहना यूसुफ को आसान इख्वती। क्यों? क्योंकि आप यूसुफ को इस वक्त में फजीलत देने का कस नहीं है, क्योंकि यूसुफ उसमें से वाजिब है, फिर वो उसमें से हो। इन्होंने कहा, अगर आप यूसुफ को फजीलत देना चाह रहे हैं आसानों के मुज़ाफ इलैह की इख्वती को पर वो दे रहे हैं, उनमें से नहीं है भाई, मुस्लिम यूसुफ अलग है, ठीक है। जबकि उनका वाजिब है कि मौसूफ उसमें से हो। एक सूरत बनी अगर आपको मुजाफिर है, लेकिन अगर आपको कॉमन तौर पर फजीलत वही तफसील हो मुतलकन, अगर आप मुतलकन मौसूफ को फजीलत देना चाह रहे हैं, चाहे जरूरी यानी मुअय्यन नहीं है मुकाबिले पे फजीलत दे रहे हैं, कॉमन तौर पर फजीलत दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर मुफरद आएगा, इसमें तफसील। जैसे यूसुफ, इसी यही मिसाल जो अभी गलत के ऊपर नीचे सही हो जाएगी, क्या क्यों, बस आपको करना ही पड़ेगा कि हम यहाँ पर यूसुफ को मुतलकन फजीलत दे रहे हैं, भाइयों के इस मुकाबले पे फजीलत नहीं दे रहे हैं, मुतलकन फजीलत दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वाजिब थोड़ी है कि फिर मौसूफ जो है मुकाबले में से हो, कोई बात नहीं है, अगर यूसुफ इख्वा में से ना भी हो चलेगा, क्योंकि हम तो मुतलकन तौर पे फजीलत दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमेशा इसमें तब्दील मुफरद मुज़क्कर आएगा, जबकि जबकि ये नजरिया गलत है, जमहूर के खिलाफ है, क्योंकि ऐसी सूरत में उलमा का जमहूर का इजमा है इस बात के ऊपर कि मुताबिकत वाजिब है, मुताबिकत वाजिब है, मुताबिकत वाजिब है। आप यूसुफ हसन फती, ठीक है, अगर तस्निया लाएंगे तब भी, तब इसमें तब्दील को तस्निया लाना पड़ेगा, इसके लिए काट के यहाँ पे मैंने आसना करा हुआ है, और सैलाने आसानो नहीं है, आसना इख्वतहिमा ऐसे कहिए, मुताबिकत वाजिब है, यहाँ पे गलत कह दिया है, क्यों कहा नहीं। तब सिरतुन, तब सिरा वयरफउ दम। अब यहाँ से ये बात मैं आपको ये कहना चाह रहे हैं, इसमें तफसील आमिल है नहीं है भाई, इन्होंने कहा अस्माउल आमिल को अल मुशब्बह बिल फेल, वो अस्माउल आमिल है और फेल से शबाहत रखते हैं, फेल। लेकिन क्या अगर ये फेल से शबाहत रखते हैं तो क्या फेल जैसी हुआ फेल में अमल की, फेल कभी आमिल है, ये ज़ईफ है, इसमें तफसील ज़ईफ आमिल है। इस बात में दो बातें हुई, दो बातें हुई, इसमें तफसील मफूले बिही और मफूले मुतलक। मफूले बिही मफूले मुतलक में तो असल इत्तेफाक है कि अमल नहीं कर सकता, इत्तेफाक है, उलमा क्या है, सब मुत्तफिक है इस बात के ऊपर कि इसमें तफसील, इसमें तफसील सब उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि इसमें तफसील मफूले बिही और मफूले मुतलक में अमल नहीं करता। ये इसमें तफसील मफूले बिही और मफूले मुतलक में अमल नहीं करता। इस बात में उलमा का क्या है, इत्तेफाक, सब मानते, सब मुत्तफिक हैं इस बात में, क्या है, सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि इसमें तफसील, एक बात मेरी क्या बात होती है कि इसकी तफसील एक सही कामिल है, और इसमें जाहिर जो जाहिर होता है वो कभी होता है, तो एक सही चीज कभी भी कैसे असर डाल सकती है। आम जिंदगी में मिसाल देखो, मिसाल के तौर पर सबसे कमजोर कौन है, मिसाल के तौर पर वसीम को पीट देगा, वसीम को पीट देगा, वसीम को पीट देगा उसने, तो
इसमें तफसील ज़ईफ़ आमिल तो ज़ईफ़ है तो इसमें ज़ाहिर करना उसका मुश्किल है। उलमा का इसमें तो इत्तेफाक है कि मज़कूर में तो मंसूब तो नस्ब का अमल देता ही नहीं है, यानी इसमें ये मुराद है मफ़ऊल बिही और मफ़ऊल मुतलक़ इसमें तो अमल करते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी इसमें ज़ाहिर में कलील बहुत कम है जो अमल करे, बहुत कम है कि वो इसमें ज़ाहिर में रफ़्ज़ का अमल करे। हाँ ज़मीर पे करेगा, ज़मीर क्योंकि कम ज़ईफ़ होती है, ज़मीर क्योंकि भाई ज़मीर चाहे ज़मीर दो तरह की होती है, मुस्ततर भाई ज़मीर चाहे बारिश हो चाहे मुस्ततर ज़ईफ़ है, इसमें ज़ाहिर के मुकाबले में ज़ईफ़ होती है ना, इसमें ज़ईफ़ ज़ईफ़ पे अमल कर लेगा। अब ज़मीर में भी बारिश से भी ज़ईफ़ है मुस्ततर, इसलिए इसमें तो सबका इत्तेफाक है कि इसमें तब्दील ज़मीर मुस्ततर में अमल करेगी। ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन फलां, अफ़ज़लु में हुआ है जो ज़ैद की तरफ ज़ैदान अफ़ज़ल है, अफ़ज़लु तो ये तो कवि वो हो गया ना, सही ज़मीर मुस्ततर भी सही और इसमें तब्दील भी सही, उसमें अमल करेगा बहुत, क्योंकि ज़मीर मुस्ततर का तो इत्तेफाक है, इसमें भी इत्तेफाक है, लेकिन इसमें ज़्यादा वो है क्योंकि इससे भी कमज़ोर है मुस्ततर, बारिश से भी कमज़ोर है। कभी होता है और इसमें तफसील है सही आमिल, तो इसमें तो इत्तेफाक है मफूल बिही मफूल मुतलक में जो अमल नहीं करता। बाकी इसके अलावा इसमें ज़ाहिर में कलील जैसे मिसाल तो अब वो वाली बोलिए, अब वो वाली मिसाल दीजिए, राय तो रजुलन सना पढ़ दिया, सना देखिए आसाना पढ़िए ताकि रजुलन मंसूब है उसकी सिफत है ये। मैंने एक मर्द को देखा कि जिसकी सिफत क्या थी, सना बिन हो अबू हो, तो इसका बाप उससे ज्यादा फसीह था। तो अबू हो को रफ दिया किसने, रफ दिया, अलामत रफ वाव दिख रही है, तो इसमें जाहिर को रफ दे रहा है, इसमें जाहिर को रफ दे रहा है, जबकि ये ज़ईफ़ आमिल है और इसमें जाहिर होता है कवी, तो ज़ईफ़ का कवी में अमल यहाँ पे करना कलील है, यहाँ मना है इसको। भाई इसमें जाहिर मंसूब मफूल तो रफ का कर रहा है, वो भी रफ का कर पा रहा है, नस्ब जब सोचो जब रफ का अमल करने में कमजोर है, कलील है, तो नस्ब का तो वैसे भी नहीं कर सकता। पहला ज़मीर में इत्तेफाक है, लेकिन अगर आप आसानों की हो आप वो करेंगे तो बाद लोग आसानों में आप वो पढ़ देते हैं, तो एक वो क्या करेंगे कि ये वाला मसला ही पेश नहीं आएगा, इसमें तफसील वाला ये वाला, वो कहेंगे आसानों खबर मुकद्दम अब वो मुब्तदा में और मुब्तदा खबर जुमला, जुमला सिफत है रजुलन की, तब फिर रफ की बात ही नहीं आएगी कि आसानी में आप वो पर रफ दे दिया, अब वो मुब्तदा है, मुब्तदा होने की वजह से मरफू, शायद मिसाल हमारा जब बन गया तो आसाना पड़ेगा, जब आसाना पढ़ेंगे तो रजुलन की सिफत ये जुमला नहीं होगा, जबकि मुफ्रद तो, और ये तरह ये कलील है, क्या है कलील है। तो क्या मकसद हुआ, इसमें तफसील सही आमिल है और इसमें जाहिर होता है सही वो कभी, सही का कभी में अमल करना सही नहीं है, कलील। हाँ जमीर में क्योंकि जमीर भी सही, इसमें तब्दील आमिल भी सही पे, तो वो उसमें कर सकता है आसानी से, लेकिन रफ का अमल कलील है, नस्ब का बिल्कुल मना, नस्ब वाला अमल कोई दे नहीं सकता। लेकिन इन जैसी एक मिसाल दी है इन्होंने, वो मिसाल दीजिए मसला को वाली मिसाल, हाँ माँ रही रजुलन की ऐनी बिनो, इन्होंने कहा इसमें तफसील था, जमीर में अमल करना तो
आपका ज़मीर पे अमल करना है। इसमें तफसील का सही आमिर ज़मीर भी सही है, लेकिन इसमें ज़ाहिर में रफ़्त का अमल करना इसका यानी क्या है, सही क्यों, क्योंकि इसमें तफसील सही, इसमें ज़ाहिर होता है कभी सही कभी में अमल करना बिल इत्तेफाक। वसीम जो है वो बीमार हो, जैसी प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा हो, तो बिल इत्तेफाक अब्बास होता है ना, तो किसी न किसी दिन लग जाता है कली क्या है, इसमें जाहिर का मतलब, लेकिन इस जैसी मिसाल में कसीर हो, इस जैसी मिसाल में मसला अल्कोहल जैसी मिसालें अगर हो कसीर हो, तो इसमें तफसील का कहाँ है, अपना तफसील, इसमें तफसील का, इसमें जाहिर में अमल करना कसीर है, रफ का अमल देखिए आसान है अल्कोहल को रफ किया। तो ये क्या है मिसाल, तौजी कैसे दें, तौजी ये देखिए पांच शर्त, पांच लिखो, ठीक है पांच शर्त है। सबसे पहली बात तो वो इसमें तफसील क्या हो, बोलिए के बाद आए, आए के बाद है पहली शर्त, पहली शर्त इसमें तफसील नफी के बाद, बताइए नफी के बाद है नहीं वहां आए तो मैंने नहीं देखा, इसमें तफसील क्या है, इसमें तफसील, इसमें तफसील नफी के बाद आए। दूसरी शर्त यह है साहिब किताब ने बस ये कह दिया मिसाल देके, क्या इन्होंने साहिब किताब समझ लिया बिल्कुल शॉर्ट में कह दिया, लाइट बंद करो, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें तफसील का ज़मीर में अमल करना इत्तेफाकी है, नस्ब का अमल इत्तेफाकन ममनू, रफ़्त का अमल इसमें जाहिर में कलीलुन, लेकिन जैसे मिसालों में कसीरुन, क्योंकि यहाँ पे इसमें तफसील मानी फेल, कितना जुमला कह के छोड़ दिया होगा, तो इसमें तफसील फेल के माना में, यानी फेल के माना है कि आसाना की जगह आप योसिन रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये अमल जो यहाँ दिया है वो या सुन दिया तो फेल है, फेल का भी काम होता है, फेल कभी हम देखिए हम पांच शर्तें देखे तो पांच शर्तें होती है, इन्होंने नहीं बताई पांच शर्तें, तो इसमें तफसील की जगह फेल रखना सही है। आप कह दीजिए मार आए तो रजुलन, ये अक्सर भी ऐसे नहीं आपको में भी आने देते, ठीक है, तीसरी शर्त इन्होंने ये बताई, हम्म, इसमें तफसील ने जिस चीज के राइट को रख दिया है, इसमें तफसील इस इसमें जाहिर को रख दे, वो जमीर से खाली हो, तो जमीर को नहीं है, ठीक है। चौथी एक शर्त, चौथी शर्त क्या है, यानी अल्कोहल में जमीर तो नहीं है ना, हाँ, ये कह रहे हैं कि जब कभी इसमें तफसील नफी के बाद आए, दूसरा इसमें तफसील की जगह फेल करना सही हो, तीसरी शर्त इसमें तफसील ने जिस इसमें जाहिर को रख दिया है वो जमीर से खाली हो, चौथी शर्त वो इसमें जाहिर हो, इसमें जाहिर दो जमीरों के बीच में आए, दो जमीरों के बीच में आए, फिर पहली जमीर, पहली जमीर मौसूफ की तरह और दूसरी जमीर, और दूसरी जमीर खुद इसमें जाहिर, ये वाली तो खुद दूसरी जमीर खुद इसमें जाहिर, खुद इसमें जाहिर की तरह,
शर्त है वो बहुत अहम है, पांचवी शर्त है वो पढ़ लीजिए, पांचवी शर्त है वो बहुत अहम है। क्या कोई भी अहम मतलब समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यानी इसमें जाहिर, वो इसमें जाहिर और अपने ऊपर फजीलत जाए, वो इसमें जाहिर खुद अपनों पर फजीलत दिया जाए दो एतबार से। तो दो एतबार, ठीक है। तो सब देखिए, जैसे आपको जो है इस वाले को देखिए, पांचवे वाले को फुरकान अली असगर, पांचवे वाले को देखिए, अल्कोहल इसमें जाहिर है, इस सुरमे को अल्कोहल नहीं, इस सुरमे को खुद अपने ऊपर फजीलत दी गई है। तो यहाँ पे इस मिसाल में दो जगह के एतबार से, दो जगह क्या है, एक सुरमा मर्द की आंखों का, एक सुरमा जैद की आंखों का। तो देखिए, मार आए तो रजुलन, मैंने कोई मर्द नहीं देखा, आसमा किया नहीं कि जिसकी सिफत ये कि मैंने कोई ऐसा मर्द नहीं देखा कि जिसकी आंखों में सुरमा जैद की आंखों में सुरमे से बेहतर हो, जिसकी आंखों का सुरमा जैद की आंखों के सुरमे से बेहतर हो। तो जैद की आंखों के सुरमे को फजीलत दी गई है रजुलन के सुरमे से। तो इस खुद सुरमा को फजीलत दी गई है, लेकिन एतबार अलग अलग है। एक सुरमा मर्द की आंखों में, एक सुरमा जैद की, तो जैद की आंखों के सुरमे को फजीलत दी गई है सुरमे के ऊपर, कौन से सुरमे के, मर्द के सुरमे से, ठीक है नहीं है जी। अगर ये पांच शर्तें हों ऐसी मिसाल में फिर कसीर है इसमें तफसील का, इसमें जाहिर को रब्त है। देखिए, सबसे पहला इसमें तफसील नफी के बाद है, नफी के बाद है अहसन, मारा है तो। दूसरा, या सुनो फेल रखना ठीक है इसकी जगह। तीसरा, इसमें जाहिर को रफा देना है जिसे वो जमीर से खाली हो। चौथा, दो जमीरों के बीच में है, ऐसे ही मीमों के बीच में हो कि जिसमें पहली जमीर पलटे मौसूफ की तरह, दूसरी जमीर पलटे पहले इसमें जाहिर की तरह। पांचवी शर्त यह है कि वो इसमें जाहिर खुद अपने ऊपर ही फजीलत दिया गया हो दो एतबार से। वो एतबार या जमाने में या दो जमानों के एतबार से, एक जमाने का, एक मतलब कोई ऐसी चीज होती, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं कोई रोजा जिलहिज के अव्वल के 10 महीनों से ज्यादा बाफजीलत नहीं देता, तो वहां पर खुद रोजा को खुद रोजा पर फजीलत दी गई है। एक रोजा जिलहिज के अलावा के महीनों का, एक रोजा जिलहिज के दिनों का। तो जिलहिज के दिनों के महीनों की फजीलत दी गई है दूसरे महीनों के, तो रोजे के ऊपर फजीलत दी गई है। मनफी भी है, मैंने कोई रोजा ऐसा नहीं देखा मुस्लिम, ठीक है। तो वो भी दो एतबार है, यहाँ भी दो एतबार है। यहाँ दो एतबार कौन से थे, जमाने के, यहाँ मकान। मकान क्या है, हाँ, सुरमा मर्द की आंखों का और सुरमा जैद, तो जैद की आंखों के सुरमे को फजीलत दी गई है मर्द, तो सुरमे को सुरमे को फजीलत। ऐसी अगर मिसाल कोई हो तो वहां पर फिर इसमें तफसील का, इसमें जाहिर को रख देना कसीरुन लिअन्नहु बिमानिल फ़िल, इसलिए कि ऐसी मिसाल में, मसला कोड वाली मिसाल में इसमें तफसील फिल के माना में होता है। अब जाहिर सी बात है फेल आमिल तभी है, ये कह रहे हैं। टाइम हो गया, इंशाल्लाह अगली बार कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अल्लाहुम्मा